الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله ومولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. محترم مکرم سامعین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے. یوں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر آپ اس کا خیال کریں اور ذرا سوچیں تو کبھی اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دماغ دیا ہے. اگر ذرا سا بھی ایک نس، ذرا سا دماغ ہلکا پڑ جائے تو زندگی ایک لاش کی طرح ہے. آپ دیکھیں ادھر ادھر لوگ پڑے رہتے ہیں، کہیں کھڑے ہیں نالوں میں، کہیں ادھر ادھر. لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں، ان کی انسانیت میں کوئی گنتی نہیں ہے. کیا ہوا؟ آپ ہی جیسے ہیں، لیکن ذرا سا ایک نس یا ذرا سا بھی کچھ ہلکا ہو گیا دماغ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے کہ وہ انسانیت سے خارج ہو جاتے ہیں. لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں، ان کی کوئی گنتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دل دیا ہے. اب آپ سوچیں اگر دل ایک منٹ کے لیے بھی ٹھپ ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے، آدمی مردہ ہو جاتا ہے. لیکن آج اس دماغ کی قدر نہیں، اس دل کی قدر نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے ہسپتالوں میں آنکھ ہی زندگی. آنکھ کے بغیر زندگی ادھوری. آدمی کا راستہ چلنا دشوار ہے، آدمی کا کپڑا دھونا دشوار ہے. آدمی اپنے کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے بال بچوں کو نہیں دیکھ سکتا، اپنی ماں بہن کو نہیں دیکھ سکتا. آدمی کی زندگی کیسی ہے آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن جس کے پاس آنکھ نہیں اس کو اس کا احساس. اپنے مدرسے میں ایک مؤذن ہے، وہ کھانا کھا رہے تھے تو باورچی نے مذاق کر کے تھوڑا سا مرچی اس میں ڈال دیا. وہ پتہ نہیں پائے بیچارے. آپ آنکھ کھولتے ہیں سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ آنکھ بند ہے کتنا عقل دوڑائیں گے؟ کون آیا کون گیا ان کو کیا پتا؟ کس نے ان کے کھانے میں کیا ڈال دیا ان کو کیا پتا؟ آپ ہی کے مدرسے میں ہے تو سوچئے آنکھ کتنی بڑی دولت ہے. رات میں گاڑی بغیر لائٹ کے کیسے چلے گی؟ سورج کی تابانی ہوتے ہوئے ان کے لیے اندھیری رات. دیکھو دن کا کتنا اجالا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہو نا بھائی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوچھو ان سے اندھیرا یہ نہیں. اب آپ دیکھیے کان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک بہرا آدمی تھا، اس کے پڑوس میں ایک بڑا آدمی رہتا تھا. تو لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ تھی. بہرے نے اندازہ لگایا شاید بڑے میاں کی طبیعت خراب ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو پھر سوچا کہ میں بھی چلوں عیادت کراؤں، لیکن میرے جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ باتوں کو اس نے اپنے دل میں سوچا. پہلے جاؤں گا کہوں گا السلام علیکم تو جواب تو دیں گے ہی. اس کے بعد پھر پوچھوں گا کہ حضرت جی طبیعت کیسی ہے تو جواب دیں گے ٹھیک ہے، کہوں گا الحمدللہ. پھر کہاں پوچھوں گا حضرت جی کون سی غذا لیتے ہیں تو بتائیں گے ہلکی پھلکی غذا لیتے ہیں چونکہ مریض ہیں، تو کہوں گا کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. پھر پوچھوں گا کہ حضرت جی کس حکیم کا علاج کرتے ہیں تو بڑے آدمی ہیں کیونکہ بڑے ڈاکٹر حکیم کا علاج کر رہے ہوں تو کہوں گا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
बहरहाल अपने दिल में वो सोच कर गए और दरवाजा कस के खटखटाया और कहा अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने अंदर से जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। फिर उन्होंने कहा कि हजरत जी तबीयत कैसी है? तो उन्होंने कहा कि मैं मर रहा हूं। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब बड़े मियाँ को गुस्सा आ गया कि मैं मर रहा हूं, ये कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हजरत जी कौन सी ग़िज़ा ले रहे हैं? तो कहने लगे जो है जहर ले रहा हूं। कहने लगे माशाअल्लाह, इससे अच्छी कोई ग़िज़ा नहीं, बहुत अच्छी ग़िज़ा है। फिर कहने लगे कि हजरत जी किस हकीम का आप इलाज करते हैं? तो कहा कि मलकुल मौत का। कहा माशाअल्लाह, इससे अच्छा कोई हकीम ही नहीं। अब आप जरा गौर करें और आप सोचें कि वो तो समझ रहे थे कि हमसे हजरत जी बड़े मियाँ बहुत खुश हैं और बहुत खुश थे अंदर अंदर आकर, लेकिन मामला क्या था? बिल्कुल उल्टा था। हजरत जी इस कदर नाराज थे, इस कदर नाराज थे कि क्या पूछे। तो देखिए कान कितनी बड़ी नेमत है। उस नेमत के न होने पर आदमी को एहसास होगा। ऐसे ही मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जुबान है जो 32 दांतों के बीच में महफूज है। एक चमड़े की हल्की पतली जो है जुबान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिर्मुहु सगीर व जुर्मुहु कबीर। जो हल्की फुल्की जो है एक जसामत वाली, एक गोश्त का एक लुथड़ा है, लेकिन कितना बड़ा बड़ा जुर्म कर जाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको 24 दांतों के बीच में रखा है कि आदमी अपने कदम से उतना नहीं फिसलता जितना कि अपनी जुबान से आदमी फिसल जाता है। इसीलिए हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सुबह होती है तो तमाम आज़ा जवारे पनाह मांगते हैं कि जुबान से और हाथ से कि देखो ऐ जुबान, तुम ठीक रहना, तुम ठीक रहोगी तो हम लोग ठीक रहेंगे, और अगर तुम ठीक नहीं रहोगी तो हम लोग पीट जाएंगे। तुम तो चले जाओगे किलों के बीच में, हमारा क्या होगा? अब आदमी देखिए, एक जालिम बादशाह है, एक हुक्म जारी कर देता है, कितने कितने घरों को मुनहदिम कर दिया जाता है, कितनों की जान खत्म हो जाती है, कितनों की जिंदगियों की वाट लग जाती है। एक जुबान की वजह से आदमी अपनी बीवी को तलाक दे देता है। एक जुबान है, ईमान से आदमी खारिज हो जाता है। चुनांचे हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक को पकड़ कर फरमाया, ऐ मुआज़, इसका ख्याल रखना वरना तुमको औधे मुंह जहन्नम में गिरा देगा। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है, अमली कलई का लिसानक, अपने जुबान को काबू में रखो, वल यसाउ का बैतुक, और तुम्हारा घर तुम्हारी गुंजाइश। चुनांचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने की गारंटी दी है, जमानत दी है, जो आदमी दो चीज की सिर्फ जमानत दे, मय्यज़मन ली मा बैन लहयई, जो उसके दोनों जबड़ों के दरमियान, वमा बैन फखिदई, और जो उसके दोनों रानों के दरमियान है। अगर आदमी इसकी हिफाजत की गारंटी ले ले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में जाने की गारंटी। लेकिन आज जो जुबान में आया आदमी कह दिया, कुछ होश नहीं हम क्या कह रहे हैं, जबकि हदीस पाक में आता है कुल्लु कलाम इब्न आदम अलैहि, इब्न आदम का हर कलाम उसके ऊपर उबाल हो जाता है, इल्ला अमरुन बिमारूफिन और नह्युन अन मुनकरिन और जिक्रुल्लाह, सिवाय अमर बिल मारूफ के, यानी भली बातों को हुक्म करने और बुरी बातों से रोकने से, और अल्लाह के जिक्र के, वमा वालाओ, और जिस चीज को अल्लाह पसंद करे, औ आलिमुन औ मुताल्लिम। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आप अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप यहां भी कामयाब होंगे और वहां भी कामयाब होंगे। दुश्मनों के दिल में बस जाता है शीरीं कलाम, दुश्मनों के दिल में भी बस जाता है शीरीं कलाम, बात तो ऐसी करे जो हर दिल को बेहतर लगे। प्यारो मोहब्बत बुग़्ज़ व अदावत के भी तौर तरीके हैं, प्यारो मोहब्बत बुग़्ज़ व अदावत के भी तौर तरीके हैं, ये तो कोई बात नहीं जो दिल में आया कह दी। आपसे सीखेगी ये दुनिया वफादारी का चलन, आप अपने सख्त लहजे को बदल कर देखिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं
इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान, दो फरिश्ते हर वक्त बैठे रहते हैं, अनिल यमीनी वान शिमाली क़ईद, दाहिने और बाईं तरफ। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, आदमी कोई भी बात कहता है फौरन उसको नोट कर दिया। अब आप सोचते हो फरिश्ता जुमेरात के दिन नजर सानी करता है, उसमें कौन कौन सी बात है, यहां तक कि जो फरिश्ता नेकियों को लिखने वाला है, जब आदमी कोई गुनाह की बात बोलता है तो कहता है कि उसको मत लिखो, यहां तक कि वो तौबा करे। उसके बाद फिर जुमेरात के दिन फरिश्ता नजर सानी करता है नामे अमाल, फिर उस पर वही लिखा जाता है जो सवाब और जो गुनाह हो। तो इसलिए देखो सबके नामा अमाल को उसकी गर्दन में लटका दिया जाएगा। कुल्लु इंसान लम्ज़लनाहु अला ताइरहु मिनुन, सबके गर्दन में लटका दिया जाएगा। क़यामत के दिन सबको अपने नामा अमाल के साथ उसमें किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। इसलिए जो बोलो सोच कर बोलो, जो बोलो समझ कर बोलो। आज ऐसी महफिलें सजाई जाती हैं, कुछ लोग उसमें किस्से और कहानियां कहते हैं ताकि लोग उसमें हंसें। याद रखिए दोस्तों, उसमें लोगों की गीबतें होती हैं, उसमें वाही तवाही बातें होती हैं, उसमें कुछ ऐसी बात भी होती है जिससे लोगों की इज़ा रसानी होती है। इसलिए हदीस पाक में आता है मन समत नजा, जो शख्स खामोश रहा वो नजात पा गया, वमन नजा फकत अफलहा, और जो नजात पा गया वो कामयाब हो। बहरहाल बातें बहुत हैं, अमल करने के लिए दो चार बात भी काफी है। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।